Hello friends, myself Yadav Nisha. Today I am going to share some information about our constitution. First question arise in our mind that what is constitution? Constitution क्या है? Constitution is a set of rules based on which our government runs. Constitution एक ऐसा कानूनी संग्रह, Constitution मीन्स संविधान, ये एक ऐसा कानूनी संग्रह है जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश की सरकार चलती है. And why it is useful? So it helps in maintaining prosperity and peace in the country. और ये हमारे देश में समृद्धि और शांति बनाए रखने में ज़रूरी है. And the list of salient features of the Indian Constitution that this is very lengthy and there are many uniqueness like its preamble, 448 articles, 12 schedules and 25 parts. और इसकी ये यूनिकनेस है कि इसमें जब ये बनकर रेडी हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन तब 395 आर्टिकल्स थे, बट नाउ इट हैज़ 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स एंड देयर वर ओनली 22 पार्ट्स एंड आफ्टर टू मैनी अमेंडमेंट्स मीन्स काफ़ी बदलाव के बाद नाउ इट हैज़ 25 पार्ट्स. मूविंग ऑन फर्दर टॉपिक, प्रीएम्बल. प्रीएम्बल मीन्स प्रस्तावना. द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव प्रीएम्बल but it was later on added to the constitution. It is a brief introductory statement that sets out guidelines which guide the people of the nation and to present the principle of the constitution and to indicate the source from which the document derives its authority and meaning. हम देखते हैं कि जैसे हमारे almanac में फर्स्ट पेज होता है इंडेक्स, like that in constitution first page is of preamble that show all the guidelines of the constitution. We are seeing that in our constitution that written India into a sovereign socialist secular democratic republic. It means हमारा भारत एक सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणतंत्र है. and in addition other words like justice, liberty, equality and fraternity. This line shows that it believes in welfare of our citizens. Next is draft committee means प्रारूप समिति. On 29th August 1947, the Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of leader B.R. Ambedkar to prepare a drafting constitution for India. The drafting committee had 7 members और इस प्रारूप समिति में जिसके अध्यक्ष थे B.R. Ambedkar, उसमें 7 members थे. N. Gopalaस्वामी, A.K. Iyer, B.R. Ambedkar, K.M. Munshi, Mohammad Sadullah and B.L. Mittar and D.P. Khaitan. This committee took 2 years, 11 months and 17 days to complete the draft constitution of India and finally submitted their law format on 26 November 1949 but came into action on 26 January 1950. This day is celebrated as our Republic Day. हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब से हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. नेक्स्ट इज आर्टिकल्स. आर्टिकल्स मीन्स अनुच्छेद, जो रूल बताते हैं, जो हमारे देश के नियम बताते हैं. इट इज़ अ गाइडलाइन in Indian Constitution for framing and defining a rule. There are many fundamental rights, duties and right to principles are given in the articles. First is fundamental rights. Along with preamble, some fundamental rights are given in the articles. Now question arose here, what is the meaning of fundamental rights? Fundamental rights means मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, the rights which are given to the citizen by the constitution. ऐसे अधिकार जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए दिए जाते हैं, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं. फंडामेंटल राइट्स आर अ ग्रुप ऑफ राइट्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री टू प्रोटेक्ट देयर सिटीजन एंड फॉर देयर वेलबींग. देयर आर 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार. राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध का अधिकार. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मीन्स सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार. एंड नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन्स संवैधानिक उपचार का अधिकार. These rights are essential for intellectual
मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। ये अधिकार हमारे समग्र विकास के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ right to equality. Right to equality is one of the 7 fundamental rights. It includes equality before law, prohibition of discrimination on grounds of race, religion, gender and caste और birthplace. इस अधिकार के अकॉर्डिंग हम सभी कानून के सामने समान हैं। इसे हम समानता का अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट वन इज राइट टू फ्रीडम. This right allows all citizens to speak freely, choose any occupation and live and travel anywhere within the country. और ये अधिकार हमें हमारी कंट्री में कहीं भी घूमने का अधिकार देते, कहीं भी रहने का अधिकार देते हैं, हमारे पसंदीदा व्यवसाय चुनने का अधिकार देती है और हमें अपनी भाषा अभिव्यक्ति का अधिकार है। नेक्स्ट वन इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण के विरोध का अधिकार। एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू बी नॉट टू बी एक्सप्लॉयटेड. इट इंश्योर्स दैट पुअर पीपल आर नॉट मेड टू वर्क विदाउट पे. इट ऑल्सो डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन बिलो 14 years ऑफ एज टू बी एम्प्लॉयड. हम देखते हैं कि काफ़ी बच्चे चाइल्ड लेबर के लिए फोर्स किए जाते हैं, बट इस अधिकार के अकॉर्डिंग इन सब के लिए इनके शोषण के विरोध में हक मांगने का अधिकार है, यानी इस शोषण का विरोध करने का अधिकार है। नेक्स्ट वन इज राइट टू रिलीजियस फ्रीडम मीन्स धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन. दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू चेंज वंस रिलीजन और बिलीफ, टू होल्ड वंस रिलीजन आइदर अलोन और इन कम्युनिटी with others in public or private, to manifest one's religion or belief in teaching, practice, worship and observance. It means that all people are free to follow any religion. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मीन्स शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधित अधिकार. This right protects the minorities. It also allows them to develop and preserve their culture. और ये अधिकार जो लघुमती कक्षा के लोग हैं, लघुमती वर्ग के लोग हैं, उन्हें उनका धर्म संरक्षित करने का और उसे डेवलप करने का अधिकार देता है. नेक्स्ट वन इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार. इट अलाउज एवरी सिटीजन टू मूव कोर्ट इफ़ एनी ऑफ देयर राइट्स आर डिनाइड. अगर हमारा कोई भी अधिकार हमसे छीना जाता है तो हमें कोर्ट में जाने का अधिकार इस अधिकार के अंतर्गत मिलता है. नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल ड्यूटीज़. देयर आर डिफाइंड एज द मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल सिटीजन. जैसे हमें कुछ अधिकार जो कुछ हमें अधिकार मिले हैं उनके साथ राइट्स कम अलॉन्ग विथ ड्यूटीज़. तो अधिकार के साथ साथ हमारी कुछ फ़र्ज भी बनती है. वैसे ही हमें कुछ हमारी फ़र्ज है हमारे देश के लिए टू हेल्प प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म एंड टू अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया. और हमारे देश में एकता बनाए रखने के लिए, हमारे देश की देश भावना को जगाए रखने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए हमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिली है. एंड दिस ड्यूटीज सेट आउट इन पार्ट 4A of the Constitution. The duties are, as an Indian citizen, we must protect our environment. हमें हमारे देश के पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए. We must protect our national property और हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति का ध्यान रखना चाहिए. We must treat all Indians as equal और हमारे देश के सारे नागरिक समान हैं, इस तरह बर्ताव करना चाहिए. वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ डेंजर और आपातकालीन स्थिति में हमारे देश की सुरक्षा करनी चाहिए. वी मस्ट फॉलो द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और जो संविधान में नियम दिए गए हैं उनका पालन करना चाहिए. वी मस्ट ऑनर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम और हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना चाहिए. वी मस्ट हेल्प टू कीप आवर कंट्री यूनाइटेड. हमें हमारे देश की एकता बनाए रखने में मदद करनी चाहिए. नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी.
Our constitution lays down certain guidelines for the government to follow for the welfare of the people. These guidelines are known as डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जिसे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस दी गई है। सेम एज इट फॉर द गवर्नमेंट, सम गाइडलाइंस आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द people. So these guidelines are mandatory to follow the state. Some important guidelines are: first, providing proper living conditions for all citizens; second, ensuring that some people do not become rich by exploiting others; third, providing work for everyone; fourth, improving the conditions of weaker section of the society. Means हमारे देश की राज्य की नीतियों में पहला, हमारे देश के नागरिकों को पूरे प्रमाण में, पर्याप्त प्रमाण में उनकी जीवन जरूरी चीज़ें मिले, ये ध्यान रखना चाहिए। और गरीब लोग शोषण का शिकार न बने, ये ध्यान रखना चाहिए। थर्ड, सभी को काम मिले, ये ध्यान रखना चाहिए। और जो वीकर सेक्शन लाइक शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जैसे वीकर सेक्शन हैं, उनकी कंडीशन इम्प्रूव करना है। ये इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के लिए दी हुई है। I hope you enjoyed this session. At last, I want to say that stay home, stay safe. Thank you.